बंदा काम में वफादारी नहीं रखता उससे वफादारी को उम्मीद ही नहीं की जा सकती। फैक्ट्री मैनेजर ऑफ द सेम कंपनी में। ओके, तो केमिकल इंजीनियरिंग से चालू किया आपने? Because I was having too much interest in chemistry, I decided to go to chemical engineering. After 12th, once I got good marks, I took admission for chemical engineering, B chemical by the way, not D. Okay, so it's 4 years course. I did from PIT College, Padma Vasantdada Patil Institute of Technology, Sangli. Very nice. And yes, like that I completed 4 years over there. Then I joined one company in Pune after my graduation. I was there for more than 2 years, I think. And I shifted to Saudi Arabia. I think yes, it's in 2006, March 2006. It's good thing for me that I did my career in chemical engineering and I'm working in chemicals. Okay. But most of time nowadays I have seen many people, they do career in somewhere else and working in another field. Okay, like my friend, they have done chemical engineering but they are working in somewhere IT. For me it was fortunate that I'm a chemical engineer and working in chemicals. Okay. So the chemicals I am working in is polyurethane. Okay. It is a one kind of insulation actually. Okay. And from that insulation only we are producing one ducting board which is used for HVAC application. HVAC means HVAC, Okay. heat ventilation and air conditioning. So when you started your first careers in abroad? I started in 2006 as I said. I joined here as production engineer. Okay. Then Nice. then like this I was given increment like production manager later on, then Okay. operation manager. Mhm. And today I am factory manager of the same company where I joined. How many years you completed in this company? Around 16 years. Today is 2022, means I joined in 2006. Mhm. So How do you 12 feel? And 4 yes, 16 years. The money, Yeah, the money wise and the comfort wise the life, and the living the lifestyle wise. lifestyle is royal. Okay. See, you These can two see now. things are more important. I Yeah. don't want to be too much professional in that. Okay. I must tell you the truth, Yeah. frankly. Yeah. The two things are more important in the life. That royal life Okay. and the money. Yes. Means I am talking about salary by the Yeah. way. One thing. These two things are more important and I am getting it here. This is your passion, right? Chemical engineering. So how you got this idea that I have to do chemical engineering instead of merchant navy? As I said, I was The beginning. I said no. In 12th, 11th, 12th, I was having too much interest in chemistry, and I had got good marks in 12th for chemistry. I think I remember 135 out of 150. Very So nice. and that was the main thing which made me go to chemical engineering. Okay. And I completely I completed this BE chemical engineering successfully Okay. without any backlog by the way, because कुछ करियर एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग अभी फिलहाल जो कर रहे हैं? एक्चुअली फॉर मी, मेरे हिसाब से छोटा काम छोटा ही रहता है सही. और बड़ा काम बड़ा रहता है. आपने आज तक सुना होगा कि कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बराबर. काम बड़ा नहीं होता है. बिल्कुल, हर एक बिल्कुल. काम एक उसका एक इज्जत रहती है. फॉर बिल्कुल. मी नो, Okay. फॉर मी छोटा काम छोटा ही है सही है. एंड बड़ा काम बड़ा ही. तो मतलब तो वो कुछ अगर choose- आपको कोई बोल रहा है कि भाई छोटे काम से स्टार्ट करो बड़े बन जाओगे, नो, बड़े suggestions काम से स्टार्ट करो बड़े बन जाओगे. अगर आप छोटे काम से स्टार्ट करते हो तो छोटे ही रह जाओ. suggestions कुछ उनके लिए या फिर आपको कम से कम 30-40 years चाहिए टू डेवलप योर सेल्फ एंड यू कैन से टू मेक यू सक्सेसफुल मैन. तो आपको अगर बहुत कम टाइम में अच्छी जिंदगी जीना है और बहुत बड़ा बनना है तो आपको बड़ा काम से ही स्टार्ट करना है. तो अगर आप रिस्क लेते हैं, जैसे कि बड़ा लोन ले लिया, सही. कुछ भी बेच के या कुछ भी घर की जमीन जायदाद जो है आपने नीलाम करके ले लिया, बड़ा बड़ा, रिस्क, हाँ. तो बड़े बन सकते हैं आप. तो डोंट टेल मी कि आप बड़ा रिस्क लेने के लिए हमारे पास उतना मतलब ये नहीं है, वर्थ नहीं करते हम लोग, या हमारे पास उतना कुछ बहुत सारे पैसा लोग नहीं करियर है, हम भी करना है. है. ये सारी अचीवमेंट्स जो आती है ना, वो सब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ. आपको जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगा. छोटे लेवल से स्टार्ट करना सीखो, लेकिन सोच को बड़ी रखा करो. सही बात बोल रहा हूँ मैं?
अगर देखो, अगर आपके पास कुछ सोर्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने सब ट्राई किया, बिल्कुल ओके देन ओके, नो इशू। इंस्टेड ऑफ बीइंग आइडल, आप स्टार्ट करो कुछ तो जीरो से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी, थोड़ा सा भी आपके पास सोर्स है कि आपके पास जमीन है कुछ तो, जो बेच के आप बड़ा कुछ तो कर सकते हो, तो करो। और दैट इज द रिस्क आई एम टॉकिंग अबाउट। रिस्क अगर आप लाइफ में नहीं ले सकते तो आप बड़े नहीं। तो आदम भाई एक क्वेश्चन और एक है, जैसे कि वर्किंग एटमॉस्फेयर जो रहता है, जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा करके, हालांकि उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो पैशनेट रहते हैं, डेडिकेशन वाले रहते हैं, बट वो उस चीज़ को कैसे फॉलो करने का, कि जो चीज़ ये जो क्वेश्चन है, ये हर एक बंदे को जब किसी भी फेस करना कैसे उसको, जब भी किसी नई कंपनी में हो जाता है तो ये क्वेश्चन उसके सामने आ ही जाता है। बिल्कुल someone will be around you सही, and he will say कि भाई You cannot do. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सीनियर रहता है वो कंपनी के अंदर, जो पहले से रहता है ना, तो वो दिखाना चाहता है कि भाई जो भी काम अभी फिलहाल नया है, वो जो तुम्हारे स्टाइल से जो कर रहे हो वो गलत है, वो दिखाना चाहता है, उसको शो ऑफ करना होता है कि भाई जो तुम करोगे वो गलत होगा, क्योंकि मैं जिस स्टाइल से शुरू से करता आ रहा हूँ वही स्टाइल सही है। तो उसको आपको झूठा साबित करना है आपके स्टाइल से, वही तो आपकी स्किल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वो स्किल आपको दिखाना है, वो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है विद योर स्किल्स। अभी वहाँ पे जो लोग पहले से हैं, वो लोग तो उनके वे से सॉल्व कर रहे हैं उसको। तो आप में अगर कुछ नया है जो आपको दिखाना है, आप दिखाओ आपकी स्किल नहीं, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो आपके हिसाब से, आपके स्टाइल से। और वो सामने वाला बंदा जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, उसको आप झूठा साबित। ऑफिस इन्वायरमेंट में ऐसे लोग रहते ही रहते हैं, और जो बंदा आपको बता रहा होता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं, उसके लिए और 3-4 लोग आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। हाँ यू आर राइट, यू आर राइट, ये तो नया आया हुआ, ये क्या करे, ये क्या कर सकता है करके, इसको तो कुछ आइडिया भी नहीं है। इट्स अ कॉमन एक्चुअली प्रैक्टिस, ये कॉमन है ये इशू हर एक नए बंदे के लिए किसी भी कंपनी में जाने के बाद। तो आपने ये इससे डरना नहीं है, अभी इसको आपने हैंडल करना है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट in our life, remember that this point है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपकी लाइफ आप खुद ही खराब कर रहे हो। सही है। हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी चीज करते हैं खुद को हैप्पी रखने के लिए ना, अगर हम लोग हमारे जॉब से खुश नहीं है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ओके, तो फिर मतलब ही नहीं बनता ना। बिल्कुल। फिर हम लोग किसके लिए कर रहे हैं अगर हम लोग हैप्पी नहीं है तो, क्योंकि वो जॉब जो भी कर रहे हैं हम लोग कम से कम 1 साल तो करना पड़ता। बिल्कुल। तो 1 साल अगर हम लोग वो जॉब से खुश नहीं है तो 1 साल हमने हमारी लाइफ को स्क्रू कर दिया। बिल्कुल। तो भाई लाइफ से खुश रहो, जो भी जॉब कर रहे हो उससे खुश रहो। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए, करना है, बट खुश रहते हुए अपने लाइफ से हम कर रहे होते हैं उससे हैप्पी रहना, हैप्पी, बट वो आप लाइफ में हमको बढ़ने के लिए भाई लोगों से कंपेयर मत करो, सामने वाले को देखो, बड़ा लोगों को देखो कि भाई हाँ ऐसा मुझे बनना है, तो उसके लिए आपको ट्राई करना है, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। डिस्कस जो भी करेंगे ना, जैसे कि आपको कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप भी करना है या आपको करियर रिलेटेड सीख ही पाओगे कुछ ना कुछ। तो स्टार्टअप अगर करना है कोई भी छोटे लेवल से, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो वो पहले देखो अपने एरिया के अंदर। जैसे कि एसी का बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो एसी मैकेनिक यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं जो इंडिविजुअल जाते हैं, फिर बाद में ज़्यादा प्राइस बता के खलास, फिर प्राइस एक बार ले लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। अरे एसी ठीक कर दो .com करके भी आप एक छोटा सा एक बना लेते हैं। काम में ईमानदारी, स्टार्टअप, ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट। और कुछ नसीहत देना चाहेंगे आदम भाई? काम में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा अपने काम में ईमानदारी नहीं रखता है, वो बंदा ईमानदारी के ही काबिल नहीं होता है। मतलब उसको आप किसी भी चीज़ में उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। सही। किसी भी चीज़ में, दोस्ती तो छोड़ ही दो फिर। बिल्कुल। तो काम से हम जो है ना ऑनेस्टी रखो, ओके, जो भी कर रहे हो सही, मतलब उससे आप ऑनेस्टी रखना है। ऑनेस्टी मतलब क्या है, वो काम दिल लगा के करना है। हाँ, दिल लगा। अगर ऊपर के दिल से आप काम कर रहे हो तो वो काम नहीं है भाई, वो छोड़ दो आप, फिर कोई दूसरा देखो। जो बंदा काम में वफादारी नहीं रखता उससे वफादारी को उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आदम भाई ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हुए, अच्छी बातें बताई हुई। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से आपकी कोई भी क्यूरीज रहेंगे, आप इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।